Hello students, welcome to our current affair class. In today's class we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 11 जनवरी 2024 के कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. In today's class first we will discuss some banking and financial news, then we will discuss some important international news. We will also discuss some news related to recently appointment and resignation, some science and technology news, sports news, obituaries, important days, some news related to state government, some national news, some defense news, some report, basically news which is indicate some rank and reports, submit and conferences, some news which is related to agreement and appointment news. सो दीज आर द न्यूज. ये कुछ न्यूज होंगी जो हमने सेक्शंस में डिवाइड करी हैं, जो हम आज की क्लास में 11 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और स्वामियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iit.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start our first news, which is banking and financial news. So क्या है पहली न्यूज, एक बार देखते हैं. First meeting of IWDC. What is IWDC? Inland Waterway Development Council commits to Rs 45,000 crore for river cruise टूरिज्म डेवलपमेंट. तो अभी क्या हुई है, पहली मीटिंग कंडक्ट कराई गई है इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसको हमारे चेयर यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने हेड किया है. और अभी 45,000 करोड़ का एक रिवर क्रूज टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए प्लान किया गया है इस मीटिंग के अंदर. क्लियर? तो काफी सारे टेक्निकल पॉइंट्स बन रहे हैं इस न्यूज से. फर्स्ट तो पहली मीटिंग है IWDC की, किसने कंडक्ट की है? बाय सर्बानंदा सोनोवाल. हुई सर्बानंदा सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. क्या डिसीजन लिया गया इसमें? The council committee invest Rs 45,000 crore to develop river cruise tourism in India. So भारत में नदी क्रूज पर्यटन विकसित करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है कमेटी ने. Out of this, 35,000 crore is allocated for cruise vessel and 10,000 crore is set aside for developing cruise terminal infrastructure by 2047. तो इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 45,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं क्रूज वेसल्स के लिए और 10,000 करोड़ बेसिकली फॉर डेवलपिंग क्रूज टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2027. ड्यूरिंग द मीटिंग द यूनियन मिनिस्टर also launched the Harit Noka guideline for green transition of inland vessel and river cruise tourism roadmap 2047. तो और क्या लॉन्च किया गया है यहाँ पर? हरित नौका लॉन्च की गई है ताकि ग्रांड ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स को बढ़ाया जा सके. This meeting took place on vessel MV Ganga Queen at Kolkata Dock Complex in West Bengal and was organized by IWAI Inland Waterways Authority of India. तो किसके थ्रू कंडक्ट की गई है? IWAI के थ्रू. और कहां पर हुई है? कोलकाता डॉक कॉम्प्लेक्स, जो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में. क्लियर? Next is IndusInd Bank introduced सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए IndusInd बैंक ने क्या लॉन्च किया है? सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड. So IndusInd Bank Limited in collaboration with National Payment Corporation of India has launched the IndusInd Bank Samman Rupee Credit Card for government sector employees. The contactless credit card offer 1% cashback on retail spends, 1% railway surcharge waiver for transaction through IRCT and 1% waiver on fuel surcharges. तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, जो काफी सारे बेनिफिट्स पहुंचाएगा, जिसमें उन्हें कैशबैक मिलेगा, रेलवे के ऊपर जो सरचार्ज लगता है उस पर वेव ऑफ मिलेगा और फ्यूल के ऊपर 1% का वेव ऑफ मिलेगा.
कार्ड होल्डर्स कैन ऑल्सो विड्रॉ कैश विदाउट एडिशनल चार्जेस। तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कैश भी विड्रॉल किया जा सकता है। Next is also a banking and financial news. Recently, Indian Overseas Bank introduced saving account portability online scheme. तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने क्या किया है, सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम लॉन्च की है। सो एक बार देखते हैं व्हाट इज दिस स्कीम। तो इंडियन ओवरसीज बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर कस्टमर्स हु मूव टू डिफरेंट लोकेशंस। तो ये किसके लिए लॉन्च की गई है, जो कस्टमर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ताकि उनके लिए जो प्रोसेस है वो इजी हो सके। दिस स्कीम एलिमिनेट मैनुअल पेपर वर्क एंड रिड्यूस द वेटिंग पीरियड फॉर रीलोकेटिंग बैंक अकाउंट। सो अगर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं और उन्हें अपने अकाउंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराना है, तो उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। कस्टमर कैन इनिशिएट एन अकाउंट ट्रांसफर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट सेक्शन ऑन द इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये डायरेक्टली इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट पर जाकर एक जगह से दूसरी जगह और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड अकाउंट न्यूज। बेसिकली ACC acquire remaining 55% stake in ACCPL at enterprises value of Rs 775 crore। तो ACC लिमिटेड जो एक सब्सिडरी है अडानी ओन्ड अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की, अब उसने एक्वायर कर लिया द रिमेनिंग 55 स्टेक इन एशियन कॉन्क्रीट एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर Rs 425.96 crore, मेकिंग इट अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी। This acquiring value at 775 crore will add 2.8 million ton to ACC existing cement production capacity। तो सिंपली ACC जो बेसिकली सब्सिडरी अडानी ओन्ड अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की, उसने क्या कर लिया है, रिमेनिंग 55% स्टेक जो ACCPL के बचे हुए थे उनको एक्वायर कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट इज आ इंटरनेशनल न्यूज। Overview of EAM S. Jaishankar visit to Nepal on 4th and 5th January 2024। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अभी 2 दिन की नेपाल विजिट की थी। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं दोनों कंट्रीज के बेसिकली MOU के बीच में। तो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विजिटेड नेपाल ऑन January 4 and 5, 2024 at the invitation of Nepal Foreign Minister Narayan Prakash Sod। During this visit, Nepal signed a long-term power deal with India to export 10,000 megawatt of electricity over 10 years। तो सबसे पहला क्या साइन हुआ है, नेपाल ने 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए भारत के साथ एक समझौता साइन किया है। Additionally, India and Nepal signed 4 major agreement covering renewable energy, power, space and technology and Hindi Impact Community Development Project। सो 4 मेजर एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया और नेपाल ने, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, पावर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। इंडिया विल आल्सो प्रोवाइड 75 मिलियन USD फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नेपाल फॉर अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स। हम सबको पता है नेपाल में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसके लिए इंडिया ने भी क्या किया है, 75 मिलियन की $डॉलर की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है नेपाल को। तो काफी बेसिकली यूजफुल रही ये मीटिंग, दोनों कंट्रीज के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग, जिसमें काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए जो हमने अभी डिस्कस की। क्लियर। नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह विजिट यूके फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी टॉक्स। तो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी 3 दिन की विजिट की है यूनाइटेड किंगडम में, जहां पर वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे। So Defense Minister Rajnath Singh is on a 3-day visit to London to discuss various aspects of Indian-UK defense partnership. The visit aimed to cover a wide range of topics including defense strategy, security challenges and industrial cooperation। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, जिसमें डिफेंस स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बेसिकली वन ऑफ द पार्ट रहा। The discussion are expected to foster partnership, encouragement investment and explore joint venture between India and British companies। तो निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत और ब्रिटिश की कंपनियों के बीच में जो उद्यमों की खोज है उसकी भी आगे उम्मीद है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। साउथ कोरिया बैन ट्रेड ऑफ डॉग मीट
in new law. तो साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक न्यू लॉज पास किया है जिसके तहत अब से जो कुत्ते का मांस है वो एक्सपोर्ट या उसका ट्रेड क्या होगा, बैन होगा. तो साउथ कोरियन पार्लियामेंट has passed a historical bill banning the eating and selling of dog meat, ending a centuries-old practice. The bill, supported by both ruling and opposition party, passed with 208 vote in favor and 2 abstention. So this law will take effect after a 3-year grace period with penalties for breeding and slaughtering dog for human consumption but not for individual consumption dog meat. तो ये कानून 3 साल की छूट अवधि के बाद लागू होगा जिसमें मानव उपयोग के लिए कुत्तों के प्रजनन और वध के लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कुत्ते का मांस खाने वाले के लिए कोई दंड नहीं है. Next is also international news. India to chair and host UNESCO World Heritage Committee in July 2024. तो जुलाई 2024 में जुलाई 21 से 30 तक भारत क्या करेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग्स को या 46 सेशन को डील करेगा, पहली बार होस्ट करेगा पहली बार इन न्यू दिल्ली. तो ये कहां पर होस्ट होगा, न्यू दिल्ली में पहली बार भारत इसे होस्ट करने वाला है. दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विल चेयर एंड होस्ट द कमेटी. क्लियर. The committee consists of representative from 21 member states and meet once a year. 21 मेंबर्स की टीम होती है, एक बार मीट होती है. जो इसका 45वां सेशन था उसको सऊदी अरब के रियाद में होस्ट किया गया था और 46वां सेशन कहां पर होस्ट किया जाएगा, इंडिया में होस्ट किया जाएगा. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन. तो गैब्रियल अटल अपॉइंटेड एज द यंग एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. पीएम इलास्बेथ बोर्न रिजाइन. तो अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने 34 ईयर के गैब्रियल अटल को न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, जो फ्रांस के सबसे न्यू बेसिकली और सबसे यंग क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. अटल हु इज आल्सो द फर्स्ट ओपनली गे पीएम ऑफ फ्रांस रिप्लेस एलिजाबेथ बोर्न हु रिजाइन आफ्टर 20 months in his office. अटल हैज प्रीवियसली सर्व एज द मिनिस्ट्री ऑफ नेशन एजुकेशन एंड यूथ. तो इससे पहले ये क्या थे, राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मामलों के मंत्री थे और अभी इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो डीआरडीओ लॉन्च असोल्ट राइफल उग्रम फॉर इंडियन आर्मी. तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द उग्रम असोल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी, डेवलप्ड बाय आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, established in Pune and Divipa Arom India Private Limited. The weight is less than 40 kg and the range of this missile is 500 meter firing range. तो 500 मीटर फायरिंग रेंज और 4 किलो से कम वेट के साथ डीआरडीओ ने उर्गम मिसाइल लॉन्च किया है, जो किसको दी जाएगी, इंडियन आर्मी को सौंपी जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो रिसेंटली स्वीडिश रिसर्चर डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सॉइल फॉर हाइड्रोपोनिक्स. तो जो स्वीडिश शोधकर्ता है उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी को विकसित किया है. तो रिसर्चर्स फ्रॉम लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी इन स्वीडन हैज डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ग्रोइंग मीडियम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉइल फॉर हाइड्रोपोनिक्स. This environmentally friendly substance derived from cellulose and a conductive polymer called poly-3,4-PEDOT surpass the limitation of commonly used mineral wool substrates. तो पहली बार हुआ है, स्वीडिश रिसर्चर ने डेवलप किया है ई सॉइल को नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सॉइल फॉर हाइड्रोपोनिक्स. किस किस का यूज किया गया, इसे ड्राइव किया गया सेल्यूलोज और पॉलीमर कॉल्ड पॉलीपेडॉट. Next is sports news. Overview of Indian tour of South Africa 10 December 2023 to 7 January 2024. So Indian cricket team toured South Africa from December to January, playing 3 T20 international, 3 one-day international and 2 test matches. India won the ODI series while the T20 and test series ended in a draw. तो ODI सीरीज को इंडिया ने जीता और T20 और टेस्ट सीरीज क्या हो गई हैं, ड्रॉ हो गई हैं. South African former Test captain Diang Elgar announced his retirement from international cricket after the last Test match against India. तो साउथ अफ्रीका के टेस्ट कैप्टन डियान एल्गर ने भी क्या कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म से रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है. क्लियर. नेक्स्ट इज अ स्पोर्ट्स न्यूज. दिव्या कीर्ति सिंह
became first Indian women Arjun Award for equestrian sports. तो अश्वारोहण खेलों के लिए जो पहली बार अर्जुन अवार्ड पाने वाली महिला बनी है वो कौन बनी है? दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। तो दिव्या कीर्ति सिंह हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड, मेकिंग हर फर्स्ट वुमन फॉर राजस्थान टू रिसीव दिस honor. She played a key role in securing gold medal for Indian Drigas team at the Asian Games in Hangzhou, China. तो जो एशियन गेम्स हुए थे होंगचोंग चाइना में, उन्होंने दिव्या कीर्ति सिंह ने उसमें गोल्ड मेडल जीता था ड्रेसेस में. This award bringing significant recognition to Rajasthan, ending a 5-year gap in receiving this prestigious honor. क्लियर? तो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण मान्यता है उसकी याद दिलाता है यह अवार्ड. 5 साल के अंतराल में का अंतराल बेसिकली इस अवार्ड के बाद समाप्त हुआ है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द ऑब्चरी न्यूज. म्यूजिक मिस्ट्रो एंड पद्मी अवार्ड उस्ताद राशिद खान पास्ड अवे. तो उस्ताद राशिद खान हु वाज अ हिंदुस्तान क्लासिकल सिंगर एंड पद्मश्री अवार्ड हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 55. किस घराना से बिलोंग करते थे? रामपुर साहसवन घराना से बिलोंग करते थे, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिल चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल सिंगिंग. नेक्स्ट इज रिनोड हिंदी पोइट हरिराम द्विवेदी पास्ड अवे. तो नोटेड हिंदी एंड भोजपुरी पोइट, लिरिसिस्ट एंड लिटरेचर पंडित हरिराम द्विवेदी पास्ड अवे इन उत्तर प्रदेश. ही वॉज नोन फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन, और उसके साथ साथ इन्हें साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान भी मिला है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू भोजपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो भोजपुरी और हिंदी के कवि थे हरिराम द्विवेदी, जिनका भी निधन हो गया है. डन. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट डे. सो हर साल 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे टू ऑनर विद टू इन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी स्पीकर्स ग्लोबली. तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो सबसे पहली बार 10th of January 2006 को बनाया गया था बाय दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह. तो पहली बार 10 जनवरी 2006 को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड हिंदी डे, और तभी से हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे हम सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज DPIIT ऑर्गेनाइज सेटअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 फ्रॉम 10 to 18 January 2024. तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड is organized the Startup India Innovation Week from January 10 to January 18. तो Startup India Innovation Week पहली बार किसने सेलिब्रेट किया है, किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है? बाय DPIIT. दिस इवेंट एम टू यूनाइट स्टार्टअप्स. जो स्टार्टअप्स है उनको एक करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना, पॉलिसी मेकर्स एंड स्टेक होल्डर्स को भी क्या करना है? बढ़ावा देना, टू सेलिब्रेट एंड एडवांस द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. Award will be given to outstanding startups and ecosystem enabler for their impact on employment generation, wealth creation and society progress. Next is state news. Odisha government signed MOU with NDDB to set up new GMP facility to produce anthrax and ENT vaccine. So उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट विच इज ARD डिपार्टमेंट साइन ए MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू एस्टैब्लिश अ गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग एंथ्राज एंड ENT वैक्सीन. द प्रोजेक्ट एम टू estimate 52.20 crore and to enhance vaccine production quality and capacity. तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ताकि वो GMP फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्शन एंथ्राज ENT वैक्सीन को डेवलप कर सके. नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज. रिसेंटली वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्च योगश्री फॉर SC/ST स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल. तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए ममता बनर्जी ने योग्यश्री बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है. सो योग्यश्री इनिशिएटिव में क्या होगा? जो SC/ST के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर वेरियस एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए योग्यश्री प्रोवाइड करेगा SC/ST के लोगों को फ्री में एजुकेशन.
The scheme will open 50 center across the state for free training along with 46 center offering training for government job aspirations. Clear? तो मुख्य प्रशिक्षण के लिए 50 सेंटर्स खोले जाएंगे और 40 सेंटर्स खोले जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए. Next is Maharashtra create new safe haven for endangered candidates and diverse wildlife. तो महाराष्ट्र में जो लुप्त प्राय कैंडिड और विविध प्रजातियां उनके लिए नया सुरक्षित आश्रय बनाया जाएगा. तो महाराष्ट्र हैज एस्टैब्लिश्ड अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व इन संगली डिस्ट्रिक्ट विच इज कवरिंग 9.48 स्क्वायर किलोमीटर. और इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट एंडेंजर कैंडिड लाइक वाइल्ड डॉग्स, वॉल्व्स, जेकल्स एंड फॉक्सेस. तो जो जंगली जानवर हैं जैसे कुत्ते, भेड़िए, सियार और लोमड़ी, इनको क्या किया जा सके? कंजर्व किया जा सके. It also connects the many conservation area and the Madhok Bird Sanctuary, creating a safe wildlife corridor with diverse forest type and rich flora and fauna. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर से इस्टेब्लिश कर रही है 9.48 स्क्वायर किलोमीटर का संगली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे वाइल्ड लाइफ लाइक डॉग, वॉल्व्स, जैकल्स एंड फॉक्सेस को प्रिजर्व किया जाएगा. Now, next is our national news. The New Republic Day Pact allows state one tableau every 3 years. तो नए गणतंत्र दिवस समझौते के तहत राज्यों को हर 3 साल में एक झांकी की अनुमति मिलेगी. तो the Defense Ministry has proposed a new plans to ensure every state and union territory get a chance to showcase their tableau on Republic Day parade within a 3-year cycle. तो ये किस लिए किया गया है? ताकि हर साल अलग अलग स्टेट्स को क्या मिल सके? मौका मिल सके और हर 3 साल में रिपीट हो सके प्रीवियस स्टेट. तो each year around 15 tableau are selected, making it hard to include every state annually. This new plan aimed to provide fair representation for all. States and UT were asked in advance about their willingness to participate in the parade for the next 3 years, and most have shown a positive response. Clear? Next is street vendor get a boost Paisa dashboard under PM Swanidhi portal launcher. The Union Minister Hardeep Singh Puri has launched 2 initiatives to empower street vendor, the Paisa dashboard and the PM Swanidhi mission monitoring portal. The Paisa dashboard provide real-time update on the progress of PM Swanidhi street vendor Atmanirbhar Nidhi scheme, allowing vendor to track loan application, disbursement and repayment. तो बेसिकली व्हाट इज पीएम स्वनिधि स्कीम? जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है. और इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपनी लोन एप्लीकेशन, डिसबर्समेंट और रीपेमेंट को क्या कर सकते हैं? रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं. क्लियर? So these are the important 11 January news which we have discussed. Now I hope you like this session. Thank you.